Good morning, India. Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Tata Talk. And today we are welcoming our esteemed guest, Dr. Aninda Sidhana. She is dedicated psychiatrist with over a decade of expertise in mental health advocacy, public health, psychosexual medicine. So आज हमारे बीच में आ चुकी हैं डॉक्टर अनिंदा सिधाना. वेलकम मैम. वेलकम ऑन टाटा Namaste, टॉक. Anshulji. I am really thankful and grateful to you for having me here. And it is really lovely connecting with you. थैंक यू सो मच मैम. सेम हेयर. एंड मैं चाहती हूँ थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए. तो आप आपकी अपनी ज़ुबानी वो सुनेंगे तो आई थिंक दैट विल बी मोर अप्रिशिएबल. Okay, so basically, I'm Dr. Aninda Sidana, psychiatrist and psychosexual medicine specialist. And my areas of interest are women mental health, then LGBTQ advocacy, and I have a passion to combat gender based violence, raise awareness about it, and also the marital counseling I do. And I promote females to embrace their sexual wellness and talk about it. So, and also I have my roots in psychiatry. So that is why I got into the psychiatry. Yeah. Okay. So, ma'am, what inspired you to become a mental health educator and advocate? Yeah. So first of all, it was decided by birth, I guess. I have written a few lines also about this. Like it was decided by birth, but then I started loving it. I found human mind very fascinating and complex. It is a human mind secrets no one can explore. The more you delve, the thoughts, the emotions, the behavior, it decides of the person. It varies from everything. So the human mind is complex, mysterious, and I keep on wondering every day what is it about. So I love psychiatry and I got into advocacy mainly for gender equality and LGBTQ advocacy. So एंड ऑल्सो टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ कि आपके घर में किसी को अस्थमा होता है, डायबिटीज होता है, आप बोलते हैं रिश्तेदार पता लेने नहीं आए, बट अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप किसी को बताओगे भी नहीं कि हमें डिप्रेशन है. Right. सो दैट इज लाइक आई बिलीव वी शुड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट. Right. So, ma'am, how has your personal or professional experience shaped your approach to mental education? So my personal experience is actually from the childhood I have been seeing about psychiatry. Like we used to since childhood we used to listen about schizophrenia, depression, headache, migraine, epilepsy. Right. So it was not a new thing for us. Mm-hmm. And then when I listened to a till 2009 I was confused, Mm-hmm. but then I listened to a talk by Dr. Nimesh Desai. He's a director of IBHAS, ex-director, and he's a psychiatrist. So when I listened to his talk about mental health act and how mental health can be shaped, I was the moment I decided I want to do psychiatry and I want to do work in IBHAS. And about my professional life, definitely in Mahatma Gandhi Medical College, it was a like experience filled with complex emotions because I had to learn Tamil along with the psychiatry. But my support system, Dr. Sukanto Sarkar, my other colleagues, they were really helpful and they taught me very well. And then I landed a job in IBHAS, and so that is my professional experience. And out of the personal experience of being in the bad marriages, and I got into women empowerment. Okay. So, ma'am, just wanted to know one thing that nowadays, जो आज का हमारा सिनेरियो चल रहा है, अब अकॉर्डिंग टू यू मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे इतनी फास्ट लाइफ में, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत जगह पे मुश्किल हो जाता है. तो Yeah. क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे है, मतलब उसको कैसे आप आपको लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है So for मेंटली अपने आप को एकदम स्ट्रिक्ट रखना. आई बिलीव कि आज की लाइफ में ही नहीं, पहले से ही मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट.
And there is my favorite quotation. Today only I wrote it on the Facebook also. I believe mind and body are married to each other. If one suffers, other also suffers. Right. Once, if you have stress and tension, you get headache, and you hear about some fearful news, some bad news, you start having increased palpitations, sweating. So आपका body and mind are connected to each other, so both should work together. And also especially in this fast paced life, हम लोग बात ही नहीं करते अपनी मेंटल हेल्थ की, काम करे जा रहे हैं, एंड देर इज लॉट ऑफ थिंग्स, बर्न आउट हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में. एंड especially men, they don't talk about their mental health, so they should be encouraged to talk about it. कि अपनी mental health का ध्यान रखो. It is not going to, you don't have to take the burden of all the responsibilities. You can talk about it if you are feeling burdened. Even for women, they are also juggling between both the roles these days. So mental health is as important as physical health, rather more important, I think. Right. So, according to you, like, what are the some most common misconceptions about mental health that you have encountered? या तो सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन जो था कि इवन लाइक फॉर अस बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ साइकियाट्रिस्ट, हम लोगों को खुद को ही ऐसा लगता था कि अगर रिक्शा पे जाना है या किसी के साथ जाना है, तो कि ये बोलना कि डॉक्टर रूप सिडाना के हॉस्पिटल जाना है, तो हमें खुद शर्म आती थी कि कोई बोलेगा पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं. तो टिल नाउ पीपल नो साइकियाट्रिस्ट, मोस्ट ऑफ द साइकियाट्रिस्ट आर नोन एज बीइंग पागलों का डॉक्टर. Yeah, तो भाई मैंने भी जो सुना है ये साइकियाट्रिस्ट के बात. पास आ रहा है वो पागल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. Mm-hmm. एंड देन लोग बोलते हैं कि अरे ठीक हो जाएगा. तो जब किसी को अस्थमा होता है तो आप ये थोड़ी बोलते हो इतनी हवा है तब तुझे क्यों दम घुट रहा है. Mm. पीपल से देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स अराउंड, सी इट, जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट, हाउ इज इट पॉसिबल. अगर किसी के ब्रेन में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल. तो अस्थमा है तो उसको दम घुटेगा ही ना, चाहे कितनी भी हवा हो. Okay, right, right, एंड देन दे से कि हम लोग जो दवाइयाँ देते हैं पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है, नशे की गोलियाँ दे देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नशे की गोलियाँ नहीं है. दूसरा, साइड इफ़ेक्ट हर दवाई का होता है. तीसरा, अगर आपको बीपी और शुगर है तब भी तो आप पूरी ज़िंदगी दवाई खाओगे. और हम लोगों की दवाई तो इट्स यूजुअली 2 साल का कोर्स या 6 महीने का, पूरी ज़िंदगी इसलिए खानी पड़ती है, लोग बंद कर देते हैं, दोबारा स्टार्ट होती है. हाँ, because वो रिलैप्स हाँ, हो जाता होगा. हाँ, सो ये. Right. और तीसरा कि सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो हमारी सोसाइटी में है कि शादी कर दो ठीक हो जाएगा, Yes. चाहे लड़का चाहे लड़की. Right. भाई शादी करके वो ठीक नहीं होगा, वो दूसरा इंसान भी बीमार हो जाएगा साथ में, आप ये सोचो. बिकॉज आई से विमेन आर नॉट रिहेबिलिटेशन सेंटर टू रेज द मेन who are ill, addicted, or whom you have not raised well. So we are not rehabilitation centers ना कि उसकी शादी कर दी तो वो ठीक हो जाएगा. और इवन विद फीमेल्स आल्सो पीपल हाइड कि वो दवाई खाती थी, छुप के खा लेना, विच इज रॉन्ग. Well said, ma'am. So, how do you see the stigma around mental health evolving over time? Like stigma, it was like my research topic also. For the 3 years I did my research on it, how much stigma is there in mental health. तो और कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास आने में. If you get a chest pain, normal acidity also, you will go to cardiologist directly कि भाई कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया. बट यू विल सफर फ्रॉम डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी फॉर ईयर्स ऑल टुगेदर. कभी बाबा के पास जाके भी लाखों रुपए लगा दोगे, मंदिरों में चले जाओगे, मेहंदीपुर बालाजी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, बट डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. So Right. now things are definitely changing because many celebrities are speaking up about it. और मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इंडियन, मुझे तो करता है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, डेफिनेटली. सो दीपिका पादुकोण टॉकिंग अबाउट मेंटल अवेयरनेस, ईरा खान इज रनिंग हर फाउंडेशन, ईशा विनोद चोपड़ा, शी इज ऑल्सो रनिंग हर फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. फरहान अख्तर has come out now about men against rape and discrimination. So he is encouraging men to talk about emotional health, to be vulnerable. कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, ये गलत है. Right. So these people, and even Nikhil Taneja is one who is talking about be a man, yaar, to talk about your anxiety issues openly.
है ना? चुप करके नहीं बैठना, उससे चीज़ें ठीक होंगी। सो स्टिग्मा डेफिनिटली कम हो रहा है, बट स्टिल इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, इट नीड्स टू बी नॉर्मलाइज्ड दैट बीइंग हैविंग सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है भई, जैसे तुमको सिर दर्द हो रहा है या खाँसी हो रही है, ये वैसे ही है, ठीक हो जाएगा। एक्चुअली होता ये भी है, हो रहा है एक्चुअली नाउ डेज कि इतनी सी बात को बहुत बड़ा उसको बताया जा रहा है, तो वो भी हुँ, एक मेंटल हेल्थ का कारण हो रहा है। और हाँ, वो यूथ, है, आई थिंक यूथ बहुत ज़्यादा इसको सफ़र कर रहा है, या कहीं ना और कहीं। सोशल मीडिया जो है बहुत इफ़ेक्ट करता है, सोशल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, डेफ़िनिटली। तो यस इट इट इज़, यू आर आजकल बच्चे एब्सोल्युटली आप राइट। मतलब सब लोग ही आपस में बात कम करते हैं और सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। बिल्कुल। फ़ोन्स तो आई थिंक आज 5 साल के बच्चे के हाथ में भी है, 3 साल के बच्चे के 5 हाथ में साल भी तो ज़्यादा बोल दिया। है। हाँ, 3 साल का बच्चा भी खाना नहीं खाता बिना फ़ोन के। जी, 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 जी। सो मैम, आपके हिसाब से एजुकेशन कितना रोल प्ले करती है मेंटल अवेयरनेस को लेके? एजुकेशन इज़ द कॉर्नरस्टोन, even for mental awareness and in other things also. And especially if you educate a girl, it means you are educating a village. If राइट, girl is educated, she is going to empower other girls, she is going to teach others also. So educating a girl is like educating a village and raising a village. She's going to empower her daughters, she's going to tell about it to other people. And definitely our education about mental health is very important. Even Indian Psychiatric Society or the school mental health program start kiए, where psychiatrists go and they tell people about the mental health, and stress management workshops are there, so which is very important. And I believe this mental health should be the part of our curriculum from the beginning only. The emotional intelligence especially, people don't know how to regulate their emotions, कि कब गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ करना है। उन चीज़ों को इमोशन रेगुलेशन शुड बी द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम ओनली, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट बिकॉज़ ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो रहा है। सो अवेयरनेस में एजुकेशन इज़ वन थिंग व्हिच इट डेफिनिटली कैन मेक अवेयर। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि किताबी पढ़ाई, इट्स लाइक गोइंग टू द विलेजेस ऑल्सो, आंगनवाड़ी में जाके भी बात करो उनकी माँओं से कि भई तुम्हारे को भी डिप्रेशन हो सकता है, दवाइयाँ खाओ। इट्स अबाउट गोइंग टू द local clubs also, you can go and educate teachers, even other doctors, डॉक्टर्स खुद नहीं आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, तो उनको भी एजुकेट करना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट। सो राइट। एजुकेशन ही की है। इट्स लाइक और आजकल जो पॉडकास्ट स्टार्ट हो गए, दे आर एजुकेटिंग द पीपल। यू गेट मोर एजुकेशन फ्रॉम द यूट्यूब एंड पॉडकास्ट। इंस्टेड ऑफ आप रील देखने के बजाय कोई पॉडकास्ट सुन लो, उसपे ही यू विल गेट सम टिप्स। राइट, absolutely right. So how can schools and workplaces create a supportive environment for mental well-being, ma'am? Yeah, so schools and institutes like these days they have actually started enrolling the counselors. School counselors are there which are with them, take care of people. And even colleges they have regulated like एक mentor होगा एक student का, that student can go and talk about the problems, and if psychiatry issue is there he can be referred. So पूरा guidance रहता है, और school counselors are playing a good role to educate and to identify. एंड उसके भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, पहले वी शुड आइडेंटिफाई, वी शुड एजुकेट द टीचर्स कि क्या साइंस आपको लगते हैं बच्चों में ऐसे कि देयर इज सम इशू गोइंग ऑन, इज कि बच्चा एकदम से सोशली विड्रॉ कर गया, बात करना छोड़ दिया क्लास में, एकदम से मार्क्स कम आने लग गए, तो टीचर शुड ऑल्सो हो रहा है ऐसा, और घर से ले घर लेट पहुंच रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं ड्रग्स के चक्कर में तो नहीं है, वो सब चीजें schools should be educated, और स्कूल में टीचर्स एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर्स आर देयर टू दिस थिंग, दे आर, दिस इज बीइंग डन नाउ, तो उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। Right, absolutely right. So, ma'am, what are some practical ways individuals can educate themselves about mental health? प्रैक्टिकल वेज टू एजुकेट अबाउट मेंटल हेल्थ, एक तो देयर वाज अ लाइक सी डियर जिंदगी मूवी, तो मैं अपनी पूरी थेरेपी में यूज करती हूँ। लोगों को शायद मेरी साइकियाट्री की बातें नहीं समझ आती, बट शाहरुख खान ने जो डियर जिंदगी में डायलॉग्स बोले हैं वो सबको समझ आ जाते हैं कि अपनी लाइफ में कैसे आगे चलना है। Right. तो वॉचिंग मूवीज अबाउट मेंटल हेल्थ आजकल तो बहुत आ गई हैं। देन
There was Karthik calling Karthik, which educated about skill, mental illness. Then Deepika Padukone ka talk suno. Uh, and then even stand-up comedians are talking about it. Unko, Right. and other than that, there are newspaper mein, there was an article by our psychiatrist, Dr. Harish Shetty sir, like uh, India actually needs a mental health minister. Right. So mental health के लिए books you can read. I myself read. I read self-help books, and I get a lot of education from them. कि how some are emotional intelligence, then how to develop a good habit. Then there are many self-help books which actually help you. Tuesdays with Mori. So these are my few favorite books which actually help to go in life. राइट ओके सो मैम आई थिंक आपके आपकी लाइफ की अगर हम बात करें आपकी जर्नी की बात करें तो व्हाट आर सम ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन मेंटल हेल्थ स्पेस टुडे आप आपने कैसे उसको चैलेंजेस तो आए होंगे हर्डल्स तो आए होंगे आपने इतना Yeah, definitely. एजुकेशन लिया है कि इट्स लाइक तो कहीं ना कहीं तो जर्नी देखिए सबकी होती है Yes. तो कुछ So, आपके कुछ बताइए for my journey, I don't want to talk about much. It has been basically going through bad marriages, gender-based violence, domestic violence, and that too from such educated families. But yes, I would like to talk about कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है. राइट ये किसी की लाइफ भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ना हो. सो अपना सपोर्ट सिस्टम सबसे स्ट्रांग रखें. देयर शुड बी फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव जिसको आप अपने मन की बात कह सकें. आधी प्रॉब्लम तो मन की बात कहने से ही ठीक हो जाती है. लड़कों में गुस्सा इसलिए ज़्यादा होता है, वो मन की बात अंदर दबा के रखते हैं और एकदम से गुस्सा निकलता है. और लड़कियाँ शायद बात करके रो के निकाल देती हैं. बट इवन क्राइंग इज़ नॉट बैड. जैसे डायलॉग ही है कि तुम खुल के रो नहीं सकोगे तो खुल के हँसोगे कैसे या जियोगे कैसे? है ना? हाँ, तो इमोशंस को अपना एक्सप्रेस करना, देन राइटिंग, जर्नलिंग, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, अपनी हॉबीज़ जो बचपन में थी उनको मत छोड़ो, दोबारा डेवलप करो. टाइम निकालो डांस के लिए, पेंटिंग. आजकल तो इतना कुछ आ गया, मंडाला थेरेपी, क्रिएटिव लोग आजकल. मैंने देखा हमारे बचपन में मेरी दादी करती थी सिलाई-बुनाई. और आई वेंट टू आइसलैंड एंड आई सॉ all the women from, like, it was a group of women from all other countries, और सब foreigners, they were knitting and they met through it. वो उनकी फ्रेंडशिप ही knitting से हुई. अच्छा सिलाई बुनाई करो, मतलब वो सब चीजें वापस आ रही हैं. एंड आई वाज वेरी, मैं बहुत हैरान हो गई थी देख के कि ये तो मेरी दादी के जमाने में करते थे कि वो सिल रहे हैं, बुन रहे हैं. एंड दे यूज्ड टू डू दिस और उनका ग्रुप बन गया. दे केम ऑन द ट्रिप. So knitting, then painting. Painting is a very good form of expression. A mandala painting is like a part of meditation only, mindfulness meditation. दो, और आप किसी भी रिलीजियस स्पिरिचुअल उसमें जुड़ सकते हो. योगा, माइंडफुल मेडिटेशन, एवरीथिंग. तो ओके अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना तो सबसे जरूरी है. और डोंट बी सो बिजी इन योर लाइफ दैट यू फॉरगेट टू लिव. सो आई मीन लिव लाइफ इज. मतलब आपकी ये स्ट्रैटेजीज हैं कि खुद को मेंटल हेल्थ से थोड़ा सा जितना कोशिश हो सके कि वहां तक ना जाएं और अगर चले भी जाते हैं तो इन चीजों से अपने आप को ओवरकम किया जा हाँ, सकता है बट यस, हाँ, बट अगर आपको लगता है कि ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सो आई हैव माई सेल्फ टेकन थेरेपी. जब मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया था, तो मुझे खुद को साइकोलॉजिस्ट की बात करनी पड़ी थी, साइकोलॉजिस्ट से, क्योंकि कई बार सिर्फ किताबें, सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं समझा सकते. सो देयर कम्स अ पॉइंट इन लाइफ व्हेन यू सी कि बहुत ही लो फील हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू शुड सीक हेल्प. उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है. मैं साइकियाट्रिस्ट होके मैंने ले ली, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? जी बिल्कुल सही बात है आपकी तो मैम हाउ हैज सोशल मीडिया इम्पैक्टेड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली uh, social media, like, it is a double-edged sword, I guess. In social media and even the general print media and all, they talk about feminism, they talk about mental health, but on the other hand, when they report suicides, तो वो इतना ज्यादा रिपोर्ट करते हैं ड्रामेटिक वे में कि वो कॉपी कैट सुसाइड आ जाता है. People start copying it. Then social media से you get help also, कि you can enroll in courses. इतने courses आ गए हैं आजकल, and you keep connected with your friends जिनको आप कितने सालों से भूल चुके थे शायद. But another thing is social media addiction जो आ जाता है. So it should be a balance.
दोनों चीज़ों का। Perfect. Right. So, ma'am, what advice do you have for individuals struggling with anxiety or depression due to social media? सो सीक हेल्प, कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको जाने में शर्म आ रही है, सो देयर इज टेली मानस, टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट की हैं, यू कैन गेट इट, है ना? It's I think, अवेलेबल, या फ्री, या okay. I will give you the number of Telemanas. It's in all the states. It has been run by Government of India, and various psychiatrists, psychologists are there, and they provide treatment. Wonderful, wonderful. Yeah. And healing अपना खुद, और एक चीज ये भी है कि you have to help yourself. जब तक ये आप तो खुद हेल्प लेने नहीं जाओगे, नहीं होगा। आई थिंक ये वाला जो एक क्राइटेरिया है कि हेल्प योर सेल्फ, वे तो आई थिंक हर मामले में ही हम कह सकते हैं। हाँ, सो यस, तो वो तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पानी का ग्लास भी हमें चाहिए तो उठाना तो पड़ेगा, वो अपने आप तो हाँ आएगा नहीं। डेफिनेटली। राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। सो मैम, अगर हम थेरेपीज की बात करें तो व्हाट आर सम एविडेंस बेस्ड थेरेपीज दैट यू रिकमेंड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट? For stress management, mindfulness, mindful meditation, they are very good therapies. Even yoga, pranayam, they all are evidence based. In NIMHANS, there is an institute special. Even World Psychiatry Association के साथ मैंने कोर्स किया था, योगा, spirituality and mental health. So that is also evidence based. Yoga, meditation, then even arts therapy, creative therapy, they are also evidence based. Then you have to go for cognitive behavior therapy, brief interventions. आजकल क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है इतना लंबी थेरेपीज के लिए जाने के लिए, सो पीपल आर डेवलपिंग हाई फिडेलिटी सीबीटीज देयर, जिसमें दे गिव यू द स्किल्स कि व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड यू कैन डू योर ओन सीबीटी। तो वो 1 महीने का वर्कशॉप रहता है, या आई थिंक 6 सेशंस रहते हैं, एंड देन यू कैन यूज इट फॉर योर लाइफ टाइम व्हेन यू आइडेंटिफाई द पैटर्न। एंड जर्नलिंग इज वन थिंग जिसमें आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। ओके। सो ऐसी कोई थेरेपी है जो घर बैठे डेली खुद से कर सकता है इंसान? खुद से कर सकता है, डेफिनेटली जर्नलिंग इज वन थेरेपी। देन म्यूजिक सुनो अपना, और देन आई टोल्ड लाइक हाई फाइडेलिटी सीबीटी, एंड देयर इज सेल्फ रिलायंस थेरेपी। ये आप अगर एक बार कोर्स कर लेते हैं, इट्स लाइक 4 वीक्स और सो, एंड देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। एंड अनदर थिंग, योगा एंड ऑल यू कैन डू, ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, आप किसी भी गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। इट्स लाइक आई एम नॉट लाइक, कोई कल्ट नहीं होना चाहिए कि भाई ये करना ही करना है। इफ यू लाइक इट, यू वेयर यू फाइंड पीस यू गो। पर ऐसा भी नहीं है कि भाई करना ही करना है और बिल्कुल ही वो हो जाओ, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अंधविश्वास भी गलत है। So, ma'am, how can individuals become mental health advocates in their own communities? आप कुछ इस पे हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल, स्पेशली जो लोग खुद सफर करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, दे टेंड टू बिकम मेंटल हेल्थ एडवोकेट लेटर ऑन टू हेल्प अदर्स, है ना? आई सी लाइक माई नीस इज 13 year old, बट शी इज सो अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ, एंड शी, आई, मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा था, शी इज अ टीनेज एडवोकेट। Yeah. Like I have written an article about her. It's a teenage advocate. She talks about women empowerment, about mental health is so important. आजकल बच्चे बहुत, जेन जी और जो अब जनरेशन आ रही है, उनके लिए थेरेपी इज अ फैशन। हम लोग स्टिग्मा मानते थे, एंड दे से इट की नहीं नहीं, हम आई हैव माय पर्सनल थेरेपिस्ट। तो अब अवेयरनेस तो काफी आ गया है, एंड डेफिनेटली आई बिलीव टीनेजर्स आर becoming mental health advocates by looking at the media and listening to people, reading books. So that is it. And by for becoming an advocate, you don't need anything. You just have to talk about it कि भाई हेल्प लो अपनी। तुम इसको ये मत मानो कि कलंक है कोई, या कोई स्टिग्मा है, कोई बहुत ही अजीब हो गया तुम्हारे साथ। बस ये सिंपल वे में समझाना कि जैसे डायबिटीज में बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं, डिप्रेशन में आपके ब्रेन में थोड़े केमिकल चेंजेस हैं जो ठीक हो जाएंगे मेडिसिन लेने से। Okay. इतना बताना है। हाँ। तो मैम, एक एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा कि जिस तरह से आज का यूथ है, तो आपके हिसाब से घर में क्या डिसिप्लिन होने चाहिए कि जिससे पहली बात तो कोशिश यही की जाती है कि आप मेंटल हेल्थ की तरफ इस प्रॉब्लम में आए ही ना, तो ऐसी क्या चीज़ें घर में होनी चाहिए? एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम
create ही now. Especially first, I believe कि there should be parents should be like एक एज के बाद they should be friends to their children. कि ये बच्चे आकर के बता दें खुद आपको कि भाई ये प्रॉब्लम है, Right. दैट विल बी बेटर इंस्टेड कि वो छुपाएं आपसे या सफर करते रहें, दैट इज देयर। और दूसरा ये भी है कि ऑब्वियसली आप बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते आज की एज में, दे बिकम रिबेलियस। देन सोशल मीडिया डेफिनेटली देयर शुड बी अ टाइम कि आप अपना काम वो सब चीजें पूरा करें डिसिप्लिन वे में एंड रिस्पेक्ट which is like anyways the ingrained thing in our Indian culture for the parents, वो होना चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स या ही एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने बच्चों के या लिए। राइट। हाँ, एंड मोर और मोर देन दैट आई फील दैट एटलीस्ट वन मील टुगेदर, शाम का खाना साथ में खाओ जितने भी लोग हैं घर में, क्योंकि सबका रूटीन अलग अलग है, बिल्कुल। कोई भी पूरा दिन तो साथ नहीं रह सकता आज की डेट में। तो राइट। एटलीस्ट एक मील आप पूरा चारों बैठ के साथ में खाएं, उस पर आप यू विल टॉक अबाउट इट, टॉक टू ईच अदर, और कुछ तो बॉन्डिंग रहेगी ना, एंड थिंग्स गेट बेटर। ओके। ओके मैम, तो मैम, where do you see the future of mental health education heading in the next 5 to 10 years? I believe for in the next I feel it is like we should keep raising the flag of mental health high, and definitely with so many awareness programs and people involved in this, mental health is becoming the corners of a it is becoming a part of the health, and maybe with time it will become part of a school curriculum also. Indian Psychiatrist Society is working towards it, so definitely जैसे पहले था कि बिल्कुल ही मेंटल हेल्थ का बात नहीं करनी है, वैसा नहीं है अब। सो Okay. डेफिनिटली पीपल आर प्रायोरिटाइजिंग देयर मेंटल हेल्थ, दे आर delving into work life balance, or they are looking at all these things themselves also. Okay. So, ma'am, if I talk about your advice, so what is the one piece of advice you would give to someone struggling with their mental health? Someone struggling with the mental health, I will advise them to go to the psychologist or psychiatrist, consult a Yeah, psychiatrist. don't wait for Yeah, anything. don't wait, don't wait. And also, for everyone, I have one advice always. Everyone in the life is fighting a battle which you know, don't know. So be kind. आपको ये नहीं पता किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है. राइट, राइट, राइट। बहुत 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 अच्छी बात कही है आपने। That is, everyone is fighting a battle they don't talk about. Right. So, how can our listeners support mental health initiatives and become more involved? They can educate themselves about mental health. जो लोग I think डॉक्टर्स they बन should रहे connect with हैं, you. they can take psychiatry, और देर आर लाइक आजकल तो इवन स्वयं ऐप है, लाइक मोदी जी ने आईआईटी के साथ करके एक ऐप बनाया है, उस पे भी कुछ कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आर देयर अबाउट वर्क प्लेस बुलिंग, एंड जस्ट टॉक अबाउट लाइक मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, यही बताना सबसे बड़ी बात है। एंड दे Right. कैन बिकम द एडवोकेट, देन इवन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल्स उनका भी कोर्सेज फ्री हैं, दे कैन डू इट इफ दे वांट, जब छुट्टियां हैं उस टाइम पर। मैं चाहूँगी मैम, कुछ ना कुछ आप रिसोर्सेज, बुक्स, प्रोग्राम्स आने वाले टाइम में जो भी आती हैं चीज़ें का आप हमारे ज़रूर हमारे व्यूअर्स को और कहीं ना कहीं आप हमें अवेयरनेस देते रहिए, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे यूथ है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, या जो कोई भी है वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो आपके इन प्रोग्राम्स में ज़रूर आएँ, वो बुक्स को रीड करें, वो अवेयरनेस को देखें, सो दैट दे कैन इवन स्प्रेड आउट एवरीवेयर। Yeah, definitely. एक तो one book is about, like, I read books of self help. Even I read the books which have been written about the mental illnesses and women empowerment. So Isha wrote a book, Finding Order in Disorder. It's about a bipolar disorder. One gets to know what is bipolar. एंड देयर इज लॉट ऑफ अदर एजुकेशन मटेरियल, इवन मेरे फादर ने बहुत सारा एजुकेशन मटेरियल प्रिंट करवाया हुआ है, छोटी छोटी बुक्स हैं कि नशे की लत है तो क्या है, मानसिक बीमारी क्या होती है, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, सो पीपल कैन ओके। अंडरस्टैंड। इवन इंडियन साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी हैज लॉट ऑफ, अभी कैलेंडर निकला है, उस पर हर चीज के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, पीपल गेट टू नो। एंड आजकल तो इंटरनेट इज लाइक फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ, इफ यू वांट टू गेट अबाउट इट।
books में then अच्छा। another, yeah. ओके मैम। सो मैम, इस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं? हाँ, डेफ़िनेटली देयर आर कुछ सेल्फ रिपोर्टिंग टेस्ट भी होते हैं, जो फ्रीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी। PHQ-9 है, GAD-7 है। उसमें क्या होता है, आप अपना क्वेश्चन्स भरते हैं, तो उसपे आपको इतना पता लग जाता है कि आर यू इन द लेवल ऑफ डिप्रेशन या नहीं। और देन टोबैको डिपेंडेंस का है, स्मोकिंग का, अल्कोहल का। तो ये सब टेस्ट होते हैं कि यू कैन डेवलप check yourself, and there are many online websites जिसपे sexual health problems का information है, एलो हेल्थ है, then इस पर the rocket health something is there. They have their questionnaires and all, you can see, but इतना ज्यादा भी आप सेल्फ रिपोर्ट करके ओवर डायग्नोज भी नहीं करना कि अगर नॉर्मल, क्योंकि डिप्रेशन और सैडनेस नॉर्मल और एबनॉर्मल, ये फर्क करना भी जरूरी है। जी। तो उसके लिए यू नीड साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, बट स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई। So being a therapist, being a doctor, being a wonderful woman, अगर मैं आपसे पूछूं तो एक एडवाइस हमारे इंडियन विमेंस को, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के विमेंस को आप क्या देना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ? फॉर विमेन आई हैव लॉट ऑफ एडवाइसेस। लव योरसेल्फ, you are not less than anybody. Then bad women, no, well behaved women rarely become history. So don't think क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, ये नहीं सोचो, उसमें अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। लिव फॉर योर सेल्फ, अपने लिए टाइम निकालो, अपना बैलेंस बनाओ, पर उसका ये मतलब भी नहीं है कि यू नेग्लेक्ट एवरीथिंग एल्स। राइट। बट फोकस ऑन योर ओन मेंटल हेल्थ फर्स्ट। ओन हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब चीजों पर, अपनी खुशी पर, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड आजकल आई थिंक विमेन आर एम्पावर्ड, नॉट आज, rather than empowered I say women are in power instead of being empowered. यस। तो अपनी सेल्फ एस्टीम या किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। एंड बी योर सेल्फ, यू आर यूनिक, एवरीवन एल्स इज टेकन टू एनीवेज। बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतने दिनों से आपसे फ़ोन पे बात कर रही थी और मैंने ये बात जानबूझ के पॉडकास्ट पे बोलनी चाहिए, पर आज आपका पॉडकास्ट करके मुझे इतनी सारी नॉलेज मिली। और यू आर सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड सो नॉलेजेबल, एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू मैम। Yeah, thanks a lot. I didn't have much time today. I didn't even go through the things also, like नो, what to talk. आपको शायद ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों की, बिकॉज Actually, आप बहुत अपार, बहुत ज़्यादा हो। सो no, I इन want दैट to केस, help women. I want to spread awareness I about would mental like health. you So, to share your social media links here, because yes, people definitely can can do that. people Yeah. can connect with you And directly. I will share with you, like I today I have, yeah, one initiative I want to tell so that people can watch it. I have started an initiative जिसमें women can get to know, या परिवार वालों को मालूम हो कि क्या रेड फ्लैग साइंस होते हैं, अब्यूज कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो उसमें वन ऑफ माय फ्रेंड हैज स्पोकन अबाउट इट, और वो प्रॉपर मूवी जैसा है। देयर इज डायरेक्टर महेश कामत हु हैज रिलीज्ड अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, द रोशंस। So he is making those documentaries in which we talk about what are the causes of psychological abuse, what are the red flag signs, या एक बच्चे पे क्या असर पड़ता है, कितनी औरतें शादी में रह जाती हैं कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो उसके बारे में आज मेरा एपिसोड उस पर ही निकला है कि भाई बच्चे के लिए शादी में रहना तो बहुत गलत है, बच्चे पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। तो दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, कि उसका आप लिंक शेयर करें, बिकॉज इट इज बिल्कुल, माई मेन एम इज टू हेल्प अदर women not to suffer. बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर, So, ज़रूर। to educate आप them. किस नाम से सोशल मीडिया पे हैं वो आप यहाँ पे बता दीजिए। My I am on LinkedIn by Dr. Aninda Sidana, then in Instagram Shrink Aninda, and Aninda Sidana only on Facebook. Yeah. ओके। सो थैंक यू Mhm. सो मच मैम, आप हमारे Yes, thank प्लेटफॉर्म पे आए, you. एंड इट विल बी ऑनर फॉर मी। आज हमने इतना बड़ा आई थिंक एपिसोड किया, होना तो बहुत दिन पहले था, बट जो होता है वो तभी होता है। सो आपने I, मुझे वुमेंस डे के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ दे दी। तो थैंक यू thanks a वेरी lot. I मच। will be very grateful अगर ये Women's Day पे release थैंक हो. यू सो मच। Thanks a lot. Yeah. Thank you.